Good morning, students. In my previous lecture, I have explained you the same chapter, but that was with the help of your book. From that, I was just explaining you. Today, I am just using this PPT to explain you this concept in more elaborate way and just show you a few pics related to the chapter. So let us see what we have studied till now. Till now, we have studied about the microorganisms. That what are these microorganisms and where are these found? So we can just see from here that these can be found everywhere. There is no specific space for them. We can just found them on the different places. These can be found. Then on the next page we can just know definition of microorganisms and how do they exist, where do they exist. So I have just enlarged this page. You can see the definition. Those organisms which cannot be seen through naked eye, which I have discussed with you. These can be unicellular or multicellular, and they can exist alone or in colonies. The example which is shown you here, this mold over the surface of bread, and as I guess most of you must have seen this mold over the surface of bread. The spoilage of bread you must have seen, and we can just see here growth of fungus has occurred. The fungus which causes rotting of the bread, that is called mucor or rhizopus. उसको म्यूकर बोलते हैं या rhizopus. Two kinds of fungi are there. Then after that, types of microorganisms. That microorganisms can exist into the different categories like bacteria, algae, fungi, protozoans. Bacteria, algae, fungi or protozoans. Apart from that, we can just see other microorganism, that is virus also is existing. We have just seen this picture also in our NCERT book, different categories of microorganism. As we have discussed these topics, that's why I'm just skipping these topics, just only telling you in a brief. Viruses also we have studied. Here I would like to show you the structure of virus. Two different viruses are just drawn here. This virus is called bacteriophage because this virus infects the bacteria. इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा बैक्टीरियोफेज पाया जाता है. दिस इज HIV वायरस जो एड्स कॉज करता है, उसका वायरस है. यू कैन सी, आपको बताया था कि इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है इट वुड बी मेड अप ऑफ प्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन लिखा है ना यहाँ पे. और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा इट कैन बी DNA और RNA, क्योंकि ये HIV वायरस है, इसमें ये RNA मटेरियल होता है. एनवेलप मतलब बाहर की कवरिंग. तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस. द नेक्स्ट वन इज वेदर दीज आर फ्रेंड और फो. तो हमें पता था कि ये हमारे दे एक्ट बोथ एज अ फ्रेंड एंड एज वेल एज अ फो. कभी हमारे दोस्त की तरह भी वर्क करते हैं, कभी कभी दे एक्ट एज अ फो ऑल्सो. दैट मीन्स देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी अवर फ्रेंड और दे कैन बी अवर फो. अब फ्रेंड में यहाँ पे आपका एग्जाम्पल था मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. कर्ड किससे बन रहा है? जो बन रहा है मिल्क से बन रहा है. दैट्स में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस इन्वॉल्व है. जो हम ब्रेड बना रहे हैं उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? ईस्ट इन्वॉल्व है. सो दीज आर आवर फ्रेंड इन दिस केस. Then commercial use of microorganism we have discussed yesterday, as I guess if you remember, for the process of fermentation, that means conversion of sugar into alcohol, and that alcohol is used for various medicinal purpose, research purpose if it is used properly. Nowadays it is also used in sanitizers which we are using to prevent this spread of the infection of the coronavirus. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है. वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट विच लिविंग ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हियर, वी कैन जस्ट से those organisms which cause disease or are harmful for us like bacteria and fungi. These are effective. Precautions while administering the antibiotics, I have explained you. It is important to remember antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. If you remember in yesterday's lecture I have explained you this. Then antibiotics are not effective against virus. क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी आपको बताया था. Antibiotics stops the synthesis of cell wall, and viruses do not have that kind of structure like that of the bacteria. And second one was that here in case of virus they do not have their own life cycle, rather they use the genome of the host to make their own copy. खुद को बनाने के लिए वो किसको यूज़ करते हैं?
होस्ट की जीनोम को कैसे बनाते हैं वो खुद की कॉपी। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे ये होस्ट का डीएनए है, इससे जाके वायरस ने अपना क्या ज्वाइन कर दिया, अपना डीएनए। अब ये डीएनए एक कंपाउंड बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ आरएनए, और ये आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। सोचो आपकी बॉडी में भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकता है। डीएनए से आरएनए बना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास हायर क्लासेस का। डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। डीएनए जो कि होस्ट का था, लेकिन उसमें किसने अपना डीएनए ज्वाइन कर दिया, वायरस ने। डीएनए से आरएनए बनाया और आरएनए से क्या बना दिया, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, वायरस का जो प्रोटीन कोड आपने पढ़ा था वो बाहर का स्ट्रक्चर बना देगा। और ये जो डीएनए, अगर ये वायरस आरएनए वाला है तो ये आरएनए इसके अंदर एनक्लोज्ड हो जाएगा, तो ये आरएनए वायरस बन गया। लेकिन अगर ये कौन सा था, डीएनए वायरस था, तो इस प्रोटीन के अंदर कौन अपने आप को स्टोर कर लेगा, कौन यहाँ पे आके आ जाएगा इस एनवलप के अंदर, दैट इज़ डीएनए। तो डीएनए वायरस भी बन सकता है, आरएनए भी बन सकता है। और ये सब किसके अंदर आ रहा है, होस्ट के सेल के अंदर हो रहा है, जैसे हमारा और आपकी बॉडी का सेल हो गया। तो इस वजह से इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती, बिकॉज दे यूज़ द सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी मतलब जिसकी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। देन फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड दैट वॉज द पेनिसिलिन। You all are very much lucky to see the fungi from which penicillin was discovered. I have just told you that Alexander Fleming, in his lab work, he has discovered this penicillin antibiotic. Then, what are vaccines? इसको आपको याद रखना है. What are vaccines? आपने, I think you all have just taken the polio drops and different kind of that medicines in the form of antibiotics you must have just seen. So what are these antibiotics? These antibiotics are either killed या inactivated oblique any of the part of the disease causing organism. जो भी disease causing organism है, जैसे हम बात करते हैं सपोज पोलियो वायरस है, तो अब इसकी हमें वैक्सीन बनानी है, तो या तो हम इस वायरस को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, या इसको हम इतनी टेम्परेचर पे ऐसी कंडीशन देंगे कि इसका जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाए, इनएक्टिव, ये किसी को बीमार ना कर सके। ये थर्ड कंडीशन वी कैन टेक इट्स एनी पार्ट। जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन इसमें होता है और क्या होता है, जीनोम, जो कि डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, तो हम इसमें से कोई एक पार्ट ले लेंगे। अब ये लैब कंडीशन से बनती है, डजंट मीन कि गए और हाथ में ले लिया, नथिंग, इट इज़ इन लैब कंडीशन, लैबोरेटरी कंडीशन। नाउ व्हाट इज़ हैपन, it is taken and it has been given in the form of that different modes like इंजेक्शन या ड्रॉप्स के फॉर्म में, जैसे पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अब ये जो हमने डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था, इसी का इनएक्टिव फॉर्म हम देंगे किसको, पेशेंट को या उस पर्सन को जिसको हमें वैक्सीन देनी है। नाउ व्हाट विल हैपन, बिकॉज इट इज़ containing the less active और inactive, या तो लेस एक्टिव फॉर्म गया है उस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का, या इनएक्टिव फॉर्म गया है बॉडी के अंदर। दैट्स वाई इन दिस केस हु विल गेट ट्रिगर्ड, WBC विल गेट ट्रिगर्ड कि समथिंग हैज़ एंटर्ड इन द बॉडी एंड वी हैव टू फाइट विद इट। हमें इससे फाइट करना है, इसको बॉडी से हटाना है। एंड नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, WBC विल डिस्ट्रॉय दैट इनएक्टिव फॉर्म। जो इनएक्टिव है या कमज़ोर फॉर्म है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा WBC। और इसी केस में WBC के पास क्या आ जाएगी, मेमोरी इन द सेंस कि अब उसको याद रहेगा कि अच्छा अगर ये वाला पर्टिकुलर केमिकल वाला कोई ऑर्गेनिज़म आ रहा है या इस कॉम्पोजिशन वाला ऑर्गेनिज़म आ रहा है, तो हमें उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज़ यू हैव लर्न द साइकिल राइडिंग, आपने साइकिल चलाना सीखा, आप साइकिल क्या कर रहे थे, चला रहे थे, ठीक है, यू वर राइडिंग द साइकिल एंड आप किसी वजह से किसी ड्यू टू सडन थिंग यू हैव फेल, आप गिर गए साइकिल से। अब वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी कि अच्छा हाँ, व्हेन आई वाज राइडिंग द साइकिल फ्रॉम दैट साइड वन व्हीकल हैज़ केम एंड इट हैज़ डिस्टर्ब मी। तो अब मैं जब रोड पे साइकिल चलाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, सही से चलाऊंगा, या आई हैव टू जस्ट पुट द ब्रेक एंड आई हैव टू जस्ट पुट माई साइकिल एट द साइड एंड हाउ वी हैव टू कॉम्बैट। ये आपकी एक मेमोरी में आ जाता है ना, कोई भी अगर हार्श
आपके पास कुछ हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई बुरा इंसिडेंट, तो वो आपको याद रहता है। तो वैसे ही WBC के पास भी क्या होती है, मेमोरी होती है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय एनी ऑफ द फॉरेन पार्टिकल विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। अब इसका फिर से हम एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट डे सिनेरियो को, जैसे कोरोना वायरस का जो सीन है इन दिस प्रेजेंट डे सिनेरियो, इसमें यू मस्ट हैव सीन दैट सर्टन पीपल आर गेटिंग क्योर्ड ऑन देयर ओन वे, वो खुद से ही सही हो जा रहे हैं बाय फॉलोइंग प्रॉपर मेडिसिन्स एंड प्रॉपर डाइट। वाई इट इज़ सो, बिकॉज दे हैव टेकन द प्रॉपर डाइट इन देयर लाइफ स्पैन, अपने लाइफ स्पैन में बचपन से उन्होंने अच्छी डाइट ली होगी, सही जो उनके पेरेंट ने उनको कहा होगा कि ये हेल्दी है बॉडी के लिए, इसको खाइए, एंड ऑल दिस थिंग दे हैव टेकन। उसकी वजह से उनकी बॉडी की या दैट हेरिडिटरी भी हो सकता है कि पेरेंट के अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रही हो तो बच्चे के अंदर भी है, तो उनके अंदर जो WBC है दे हैव द पावर टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ मोर प्रोमिनेंटली एज कम्पेयर टू इन द सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वो जल्दी रिकवर हो जा रहा है, वही कुछ के अंदर ये वीक हो चुकी है, या तो डिजीज़ की वजह से, या उनकी एज के फैक्टर की वजह से, या हेरिडिटरी के थ्रू उनके अंदर उतनी इम्यूनिटी नहीं आ पाई। देन इज़ द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, दीज आर ऑल्सो यूज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, दीज आर कॉल्ड। इसमें क्या आ जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका आपने ये इमेज देखा हुआ है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस बीट्स लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग नॉस्टॉक, एक होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको आप बोलते हो साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक के जो नाइट्रोजन है उसको ये स्टोर कर देते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आप बोलोगे नाइट्रोजन का काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर योर बॉडी। अगर हम एक एग्जांपल दें तो आपकी बॉडी में जो DNA है उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं विच आर कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस, वो नाइट्रोजन से ही बने होते हैं। सो दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, द बेस्ट क्लींजर ऑफ our mother earth apart from many other living organism, one is also these microorganisms। अब आप ये सोचोगे कैसे मैम क्या बता रही हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, अब जस्ट टेक वन चपाती और जस्ट टेक वन बोल ऑफ पल्सेस। अब इसको आप किसी कॉर्नर पे ऐसी जगह रख दो वेयर इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टिंक, आपके घर के आसपास थोड़ा दूर रखना, एंड यू विल फाइंड दैट आफ्टर सर्टन टाइम यू कैन फाइंड सर्टन फोल स्मेल, और इसको अगर आप ऑल लॉन्ग ड्यूरेशन में रखोगे तो हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दें। सो यू हैवंट एडेड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू दैट, बट देन ऑल्सो डाइजेशन हैज़ स्टार्टेड ऑफ दैट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या आप जब कंपोस्ट बनाते हो, यू ऑल मस्ट हैव जस्ट हर्ड और सीन दैट, कि जब आप कंपोस्ट बनाते हो और आप उस टाइम पे whatsoever द पील्स वर देयर, पील्स हैं या जो भी वेजिटेबल वेस्ट है उसको आप डिश एक किसी गड्ढे में रखते हो, कवर कर देते हो, आफ्टर सर्टेन टाइम इट गेट्स डाइजेस्टेड, इट्स ऑल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which digest the dead remain of the plant or animal, these are called decomposers। इसको हम बोलते हैं decomposers, and this term decomposer you will study in your class 9th as well as in your class 10th। अब we have just read कि microorganisms are very much nice for us। अब ये टाइम आ गया है कि we should study certain microorganisms are harmful for us also, and those disease causing microorganisms are called as पैथोजेंस। जो डिजीज़ कॉज करेंगे उनको हम पैथोजन बोलेंगे। अभी कैसे एंटर कर सकते हैं, फूड से एंटर कर सकते हैं, वाटर से एंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट कंटेंट, जैसे अब योर पेरेंट मस्ट हैव आस्क्ड यू कि कुछ ज़मीन पे गिर गया उसको मत खाना, जस्ट ईट समथिंग आफ्टर वॉशिंग योर हैंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है, पैथोजन लाइक कॉलरा एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस मीन्स। देन माइक्रोबियल डिजीज़, जो माइक्रोब से होने वाली डिजीज़ होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, यानी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल जाती हैं। अगेन आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, दैट इज़ द केस ऑफ कोविड-19, जिसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है, क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो एक पर्सन से, सपोज़ ये पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, इनके बीच में केवल बात करने से ही, एयर टू एयर या किसी ऑब्जेक्ट को टच करने से इट कैन स्प्रेड।
एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़, ये तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, बट बेस्ट एग्जाम्पल तो आपको ही पता है, कोविड-19 डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय द वायरस कोरोना वायरस. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, अब यही है जैसे आपने कोरोना वायरस के केस में भी देख रहे हो, कॉमन कोल्ड का यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि वो जब स्नीज करता है तो ड्रॉपलेट जो है जिसमें मॉइस्चर है और वो वायरस भी है, वो एयर में स्प्रेड करते हैं और वहाँ से वो हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में जा सकते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कैरी कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ कैरियर. लाइक वी हैव जस्ट रेड कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है. सो मलेरिया इज़ नॉट काज्ड बाय मॉस्किटो. मॉस्किटो इज़ ओनली कैरियर ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Malaria is caused by the microorganism. What that microorganism is called? It is Plasmodium, which is a yes, it is Plasmodium. From that this malaria is caused, but उसका कैरियर मतलब किसके अंदर से वो ह्यूमंस के अंदर आता है? इट इज़ थ्रू मॉस्किटो. अब यहाँ पे दिया एनोफिलिस मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया एंड एडिस मॉस्किटो इज़ द कैरियर फॉर द डेंगू वायरस. वो कौन सा वायरस को कैरी कर रहा है? डेंगू वायरस को. इन द सेम वे हाउस फ्लाइज क्या कर सकते हैं? ये भी फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं एंड दे कैन मेक अस टू फॉल सिक. हमें बीमार कर सकते हैं. Then here are the certain chart is mentioned here, some common human disease caused by the microorganism. It is very much interesting as well as you can just relate it to that. These diseases you all must have heard from one or the other sources at your home. Tuberculosis, cholera, hepatitis A, malaria. This is tuberculosis can be caused by tuberculosis is caused by bacteria. Measles are caused by virus. Chickenpox virus, polio virus. It is just mentioned here. Then how these are transmitted. So this you all have to study on your own. It is very much easy. If you find any something hard, you can ask me. So this is caused by bacteria, then virus, bacteria, virus. All these diseases are caused, and but prevention we have to study how we can prevent. It can be prevent only like tuberculosis, because these are pathogenic disease, by proper hygiene, following proper hygiene, maintaining the distance, and if you are touching the belongings of any of the patient, then in that case we have to follow proper hygiene and try to avoid just touching the objects of the diseased person. And we can do vaccination, which we have studied. Again, for the cholera and the typhoid, it is given sanitization and proper boiled water and vaccination. For hepatitis, because it is that disease is spread by the community, so here drink boiled drinking water and vaccination. For malaria, mosquito net is there, or mosquito repellent we can use, spray insecticides and control the breeding of the mosquitoes. Then disease causing microorganisms, those microorganisms which can cause disease in human being and that are fatal for our body. Here example I will read out. Like Bacillus anthracis causes the disease anthrax. एक bacterial disease है anthrax which is caused by Bacillus anthracis. अब इसमें क्या लिया हुआ है कि anthrax is a dangerous human cattle disease caused by bacterium. ह्यूमन में होगी और कैटल में होगी, जिसे फूट एंड माउथ डिसीज भी बोलते हैं इसको. ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. ये किससे हो रही है? वायरस से हो रही है. देन प्लांट में भी होता है. इट डजंट मीन केवल ह्यूमन्स में होता है. यू ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ स्पॉट्स इन द plant. It's a homework for you. If you are getting any of the vegetable or things and you are in plant you are having at your home, if you find any kind of such spots, send me the pic of that along with your assignment. That is also a work for you all. Like disease causing microorganism in plant में भी होता है, and it can be viral disease, it can be bacterial disease, it can be fungal disease also. ठीक है, तीनों प्लांट को अफेक्टेड करते हैं. Together we can call it as a microbes. And in which plant they affect all the kind of plants. Examples are given: wheat, rice, potato, but you can mention any of the plant. अब प्लांट के डिसीजेस का नाम दिया गया सिट्रस कैंकर. नींबू के ऊपर आई थिंक यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्पॉट्स. ठीक है, दीज आर कॉज्ड बाय, ये देखो ऐसा देखा होगा नींबू के ऊपर रहता है. मदर सेज दीज आर spoiled, ये rotten. So it is caused by bacteria. And how it can spread?
through air. Rust of wheat inside over the surface of wheat, what happens, like this brown spots started appearing over the grains and the leaves. You can see here जो wheat का पौधा होगा ये किससे होता है, फंजाई से होता है, और ये स्प्रेड कैसे होता है, एयर से और सीड से. येलो vein mosaic of भिंडी, I think I have seen this, I don't know whether you all have seen that or not. In the leaves of bhindi or in several other plants, you must have seen such kind of yellow spots start appearing. These are called by virus and these are spread by insect. Now we have just seen these are causing damage to us, but now we can do certain strategy to prevent that spread of these microorganisms over the food or over the things which we use, and prevent the spoilage. चीज़ें ख़राब ना हो, फूड ख़राब ना हो, इसको स्पॉलेज को बचाया जाए. What are the techniques for that? Chemical method. We are using certain chemicals to prevent its what you can say spoilage और ये डैमेज ना हो. इसलिए what are the chemicals which can be added? Like आप अगर कोई फूड मार्केट का फूड प्रोडक्ट यूज़ करिए तो उसमें लिखा रहेगा एडेड प्रिजर्वेटिव्स, यानी प्रिजर्वेटिव उसमें एडेड हैं. तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज़ हो सकते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. दीज आर द सर्टेन केमिकल्स एंड विच आर द कॉमन केमिकल्स विच आर यूज्ड एट आवर होम. जैसे अचार मम्मी बनाती हैं तो वो सॉल्ट ऐड कर देंगी, ऑयल ऐड कर देंगी. तो दीज ऑल आर द काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. बाय यूजिंग ये केमिकल मेथड हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें अब देखो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट. By using common salt we can just preserve certain thing like fish, meat. कच्चा आम है, इसमें आपने salt that you have spread the salt and then you can store it for long duration. Like I think you all must have seen जब मम्मी अचार बनाती हैं या घर पे अचार बनता है, they put salt over that pickle. अचार के ऊपर जब मैंगो कट किया है, रॉ मैंगो को, उसके ऊपर वो सॉल्ट डाल देती हैं. व्हेन वी आस्क फ्रॉम अवर मदर व्हाई शी इज़ डूइंग सो, सो शी रिप्लाइज दैट सो दैट इट्स मॉइस्चर शुड गो एंड इट शुड नॉट गेट रॉट. मॉइस्चर हट जाए और वो सड़े ना. तो यू कैन आस्क. एंड शुगर, फॉर दैट यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मुरब्बा and that rasgulla also generally do not get spoiled if you have kept in a proper condition. The sugar is also added. I have just given like jam, jellies, squashes are there, but this can also prevent the microbial growth, but in a proper condition you have to keep this thing. Oil and vinegar, pickles, vegetables, fish, meat, these all can be kept inside the oil and inside the vinegar, and microbes generally do not spoil that. By heat and cold treatment. Heat treatment is you can just see to spoil to prevent the spoilage of the food. जहाँ पे heat दिखाई जाती है, you all must have seen whenever any grain like wheat is purchased, then it is spread in the sunshine and your parent asks so that moisture should go away and no microorganism could infect that grain. तो इसलिए उसको heat treatment देते हैं. cold treatment तो fridge का आपको पता ही है, we keep various food stuffs inside the fridge to prevent its spoilage. Pasteurization, this technique is very much nice and you use the product of this technique. Pasteurization is the process of heating the milk at the temperature of 70 degrees Celsius for 50 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes. पहले आप मिल्क को गर्म करोगे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, देन उसको तुरंत आपको ठंडा कर देना है. इससे क्या होगा, जो मिल्क है वो स्पॉइल नहीं होगा, उस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे. एंड व्हाट्स एवर मिल्क वी आर जस्ट रिसीविंग एट आवर होम, जो मार्केट का आता है, इट इज़ पास्चराइज मिल्क ओनली. दैट मीन्स उसमें माइक्रोब्स को इस टेक्निक से फिनिश कर दिया जाता है. द टेक्निक विच इज़ मेंशन हियर, डिस्कवरी is done by the scientist Louis Pasteur. From his name only pasteurization name has been given. Then by storage and packing, if we are going to store the food in a very proper way and we are going to pack the food in a very proper way, then also it can prevent growth of microorganisms to a large scale. So today we are studying up till here only. On the next lecture we will study from nitrogen cycle and then other topics.